Good Yes. good evening, everyone. चलिए इसमें अगर दिखाई I think कुछ लोग को mute. Can हाँ we mute everyone? yes. Good evening, everyone, and a very happy new year to all of you. And I would like to give special, mention to our few new interns who have joined this meeting for the first time. Now, I would like to, call upon Yogini ma'am to say something about this event. Yogini ma'am, are you there? Yes, yes. Thank you so much, Ekta. Okay. सभी को नमस्कार, namaskaram everyone. Good evening and wishing a very, very happy calendar new year to each and everyone present here. Not switching on the camera as not in a presentable state right now. Please excuse me for that. And yes, so today we have our monthly session. Generally, we have it on the first, but today we are doing it on the second since everybody must be having their own things on the 1st of January, being with the family and everything. So first is the home family, and the second day of the new year is the Bioenzymes family. So today we are with our Bioenzymes family and with our Bioenzymes family's senior member Satish ji today, who would be addressing us. And everybody knows him so well. तो आज बहुत ही अच्छा दिन है. And this being the month of bioenzymes, which we are going to celebrate throughout this month. To begin with, it's Satish ji, none other than Satish ji today. And also a special mention to, like Ekta said, all the new members who have joined today, that every month, first of the month, we have these kind of sessions where you can learn so much about what other person is doing. You can share and express. You can express your views also. You can interact with your members who are present over here. So this is for each and every one of us to learn something. It's not that since you know everything, you are making products, there's nothing to learn. Every day is a learning day. We keep learning, we keep growing together always. So it's just a small message on the New Year's Day for all of us, that we need to attend these sessions, we need to interact, we need to stay together to bring in the change for BE to be more popular amongst each and everyone. हर घर बायोएंजाइम तभी होगा जब हर घर एक साथ मिलकर ये काम करेगा, अकेला का काम है नहीं. So that is what I wanted to share with all of you. Thank you so much, and over to you, Ekta. Ekta, you're muted. You're muted, dear. Sorry. So thank you, Yogini ma'am, for your words. And before introducing our speaker, we will start with Shanti Bhat. So can you enable the screen sharing host? I'm unable to share my screen. Hello. Ekta, I think you're the co-host. You can try now. Yes, now I can. So I'm starting with the Shanti Bhat. It's yet to play. Can you just click on the play? Close your eyes gently. अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें. Stay with us for a while. कुछ क्षण के लिए हमारे साथ बने रहें. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Thank you, everyone. Now I'll stop sharing my screen. So now we're going to introduce our speaker. So he is none other than Mr. Satish Jain. So I've met him like 3 times, and I must say he's one of the absolute favorites among the BE members for me. So he's truly an embodiment of bioenzymes. You could say he talks bioenzymes, he walks bioenzymes, he makes, and he deeply admires those who make bioenzymes. So he is the chief enzyme officer of BEA, like the academy, and he has dedicated himself to the cause of bioenzymes with his unwavering passion and commitment. He manages an incredible enzyme bank, which is like the blood bank, with thousands of liters of enzymes readily available. So this initiative ensures that whenever there is a need, he can supply bioenzymes seamlessly to meet the demand. So the driving force behind his work is to provide sustainable alternatives to chemical-based cleaners, thereby contributing to a healthier planet. But his mission doesn't stop here. Through his efforts, Satish sir is also creating employment opportunities by diverting the wet waste from landfills and transforming it into something productive. His bioenzyme-based cleaners nurture the earth by reducing pollution, conserving resources, and encouraging eco-friendly practices. He dreams of a greener and cleaner India. He envisions converting schools and colleges across the country into green campuses, empowering self-help groups by providing them with meaningful employment opportunities, and revolutionizing government offices by replacing chemical cleaners with bioenzyme and its based products. So it is indeed inspiring to see someone so dedicated to such an important cause. Let's give a warm welcome to Satish sir, and I'm sure we will leave today's session with a renewed sense of purpose and actionable insights. Over to you, Satish sir, and welcome. थैंक यू ऑल। सभी को धन्यवाद और सभी से निवेदन है कि अपना वीडियो बंद कर लेवे ताकि आवाज सबको सही सही जाए। चेहरा फिर अपन मेरा बाद में देख लीजिएगा। और बायोएंजाइम की यात्रा जो है वो सन 2019 में चालू हुई और 19 में मार्च में बायोएंजाइम के बारे में बेसिक जानकारी मिली और रियल बैचिंग चालू हुई। वो 2019 अप्रैल से चालू हुई। उसके बाद में 2020 में जस्ट बिफोर कोविड प्रीति जी से और में मुलाकात हुई, एकेडमी में ज्वाइन करना हुआ। उसके बाद में फिर ये कारवां चलता रहा। कोविड का समय खूब अच्छा समय मिला मुझे, मैंने उसका जम करके उपयोग किया एंड आई हैव स्टार्टेड बैचिंग ऑलमोस्ट एवरी डे। वो मैं अभी भी कर रहा हूँ। 2 लीटर से लेकर के 2000 लीटर के टैंक में भी मैंने बैचिंग किया एंड आई एम स्टिल बैचिंग इट। और सबसे पहले मैं अपना धन्यवाद देता हूँ या मेरी कृतज्ञता है जिन लोगों ने मुझे इस काम को आगे बढ़ाने में मदद की, जिसमें कि जूस के ठेले वाले, फल दुकान वाले, फल बाजार वाले और ये मंदिर वाले, कैफे वाले, ये सब लोगों ने मुझे खूब सहयोग दिया। मैंने उनके सहयोग से ही ये पूरा बैचिंग कर पाया है। और बस ऐसे करके ये सफर चालू हुआ और स्टिल गोइंग ऑन और आखिरी तक जाते भी रहेगा। और वेस्ट वाटर पे पहला ट्रायल हम लोगों ने जो किया था वो 2019 जुलाई में किया था। महासमुंद के पास, रायपुर से 60 किलोमीटर दूर महासमुंद है, वहां पर एक राइस मिल में हम लोगों ने वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया था। आप लोग को आवाज आ रही है? हाँ सतीश जी। Yes, क्लियर yes, क्लियर है ना? yes. हाँ ठीक, ओके। तो
पहला जो वेस्ट वाटर में ट्रायल किए थे वो 2019 में किया था राइस मिल का, जुलाई में। उसके बाद से वेस्ट वाटर की जो ट्रायल्स की रिपोर्ट आई, उससे ये मन में विश्वास हो गया कि ये बहुत अच्छे से काम करेगा, और काम भी किया। उसके बाद में गौशाला में भी गए हम लोग, गौशाला में भी काम किया, गाय को ट्रीटमेंट किया, वहाँ की गौशाला की सफाई इससे किए, कंपोस्टिंग किया, और एक वहाँ पॉन्ड भी था, उसमें अजोला लगा हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने बायो एंजाइम से ट्रीट किया। तो अजोला की फसल 4 गुना अजोला बढ़ गया। दूसरा, एक 100 साल पुराना रोड साइड में प्लांट था, उसको काट करके हम लोगों ने, कटा हुआ आया था वो अलाव जलाने के लिए, सर्दियों के लिए, उसको हम लोगों ने जेसीबी की मदद से वहां लगा करके उसमें लगातार एंजाइम स्प्रे करते रहे, और वो आज पूरा फुल फ्लेजेड है। उसको कोई ये नहीं बोल सकता ये रोड साइड से कट करके आया है और यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये सब काम चलते रहे। उसके बाद में काम लगातार चल ही रहा है। खूब घूमा भी हमने बायो एंजाइम के लिए, लोगों से मुलाकात की, किसानों से मुलाकात की, सेल्फ हेल्प ग्रुप से बातचीत की, और इसको जैसे भी करके घर घर तक के पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो ये सब स्टोरी रही है। दूसरा, इवेंट्स की बात है तो G20 मुंबई में हम लोग किया, अणुगुण लॉन्च किया, वाटर फेस्ट बनारस में गए, सोनीपत ऋषिवुड यूनिवर्सिटी में गए, और अभी इसी साल हम लोगों ने दौरा किया पंजाब, हरियाणा, लुधियाना का। गुजरात गया लास्ट ईयर, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन हम लोग गुजरात में थे, और मैं गुजरात में था, टीम जम्मू श्रीनगर में थी। तो ये सब जो काम है वो लगातार चल रहा है। रोज किसी न किसी का नंबर निकाल करके फोन से उनसे बात करना, उनको बायो एंजाइम के बारे में बतलाना। फिर इशू है क्या? तो ये सब चीजें लगातार चल रही है। और बायो एंजाइम का अल्टरनेटिव होना जरूरी है। जब तक कि हम केमिकल का अल्टरनेटिव नहीं देंगे, तब तक के ये कह पाना मुश्किल है केमिकल का। तो हम लोग करेंगे तो भी हमारी बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। बनाने के बारे में आप लोग सब जानते हैं, इसलिए उस पर बात नहीं करेंगे। और अभी जो मेन काम कर रहे हैं वो किसानों के साथ कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कनेक्ट कर रहे हैं, कॉलेज स्कूल उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपने कैंपस को ग्रीन कैंपस में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तैयार भी हो रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से चल ही रहा है। और अकेडमी की तरफ से बायो एंजाइम के सैंपल पूरे देश में भेजे गए हैं। पंजाब भेजा गया, लुधियाना भेजा गया, जालंधर, उड़ीसा पूरी भेजा गया, यूपी में मथुरा भेजा गया, श्रीनगर, उज्जैन, क्षीरसागर को हम लोगों ने ट्रीट किया। राजस्थान में भिवाड़ी करके जगह है, वहां पर हम लोगों ने पौंड में टेस्टिंग की थी। वहां पर पौंड फायर ब्रिगेड में बायो एंजाइम मिला करके, पानी, बायो एंजाइम और फायर ब्रिगेड में डाल करके हम लोगों ने पूरा उसको स्प्रे किया, और स्प्रे करने से 4-5 दिन के अंदर में पानी का कलर बदलना चालू हो गया। तो फिर ये विश्वास आ गया कि नहीं, ये बहुत अच्छे से काम करेगा। डॉक्यूमेंटेशन और इसकी कमी थी हमारे पास में। अब धीरे धीरे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं, उसको धीरे धीरे आगे लेकर के जाते जा रहे हैं, और सभी लोगों का काफी अच्छा सहयोग है हम लोगों को। और जितने भी हमारे सदस्य हैं, जो एंटरप्रेनर्स हैं, वो सभी लोग अपनी अपनी कैपेसिटी से अपना अपना काम को कर रहे हैं। ये सब है। बायो एंजाइम का वेरिएंट्स का बात है तो मेरे पास लगभग 40 से ज्यादा वेरिएंट है। फल हो गया रखा है। वॉल्यूम और क्वांटिटी आप पूछेंगे तो मेरे को नहीं मालूम है कौन सा कितना है,
क्योंकि मैं जिस समय बायो एंजाइम बना रहा था तो मेरे को ये ध्यान नहीं था कि मैं क्यों बना रहा हूँ, बस मैं बना रहा था। मुझे ये बाद में पता चला कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा नोबल कॉज छुपा हुआ था, जो एकेडमी ने उसको सामने लाया और सब मिलजुल करके पूरे देश में इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और रहा बात कोई भी किसी भी बड़े कोई वाटर प्रोजेक्ट हो, लैंडफिल हो, एक्यूआई हो, जिसके लिए भी काम करना है तो एकेडमी के साथ मिल करके इस काम को बहुत अच्छे से किया जा सकता है हम लोगों के द्वारा में। और बस, और बताइए, पूछिए, अब आप लोग पूछिए। Thank you, Satish sir. Does anyone wants to ask any question? मैं आई? Good. Yes, हाँ, ma'am. हेलो सर। सर बहुत इंस्पायरिंग है कि ईच डे हम एक बैच क्रिएट कर रहे हैं और फिर उसको मतलब रोज करना विद कंसिस्टेंसी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं भी कुछ स्कूल्स और कॉलेजेस को अप्रोच करना चाहती हूँ एंड किया भी था नियर पास्ट में, कि वो लोग अपने ये ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव करें और बायो एंजाइम का सच अच्छे से यूटिलाइजेशन करें। तो इसके लिए मतलब स्कूल्स तो रेडी है स्विच करने के लिए, गिवन उनका प्राइस पॉइंट वगैरह सब मैच हो जाए और मतलब एट द एंड चीज आ जाती है कॉस्ट के हिसाब से। तो सर आपको क्या लगता है कॉस्ट सिर्फ एक लौता पैरामीटर रहा क्या आपके भी डिस्कशंस में, या आपने कैसे अप्रोच किया उसको, कुछ चीजें जो हम टिप्स की तरह उसको यूज कर सकते हैं? नहीं देखिए, कॉस्ट कॉस्ट को आप यदि पकड़ेंगे तो वो बहुत महंगा लगता है बायो एंजाइम, क्योंकि नेचुरल कॉस्ट है उसका, हम्म। क्योंकि बनाने में भी सभी मेहनत पूरी जुड़ी हुई है। और दूसरा चीज है कि हम 5 लाख लीटर आप बोलेंगे हमको हार्पिक या फिनाइल दे दीजिए, हम नहीं दे सकते हैं, हमारी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई बिजनेस हाउस वाले लोग नहीं हैं। ठीक है, तो करेक्ट। नेचुरल जो राइट। चीज होगा वो महंगा ही रहेगा। लेकिन आप केमिकल डाल करके इन्वायरमेंट का, पानी का, मिट्टी का, अपने बच्चों का, सबका क्या नुकसान कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आप कीमत को सोचेंगे तो कौन सी कीमत अच्छी है? सस्ता केमिकल वाला अच्छा है कि महंगा नेचुरल जो सबको नर्चर कर रहा है? तो ये एक पॉइंट हमको उनको समझाने वाली बात है, क्योंकि कॉस्ट पे आके हर आदमी की गाड़ी रुक जाती है। चाहे वो किसान है, वो भी बोलता है कि ये महंगा है। लेकिन आप जब उसका लॉन्ग टर्म आप सोचेंगे, सभी चीजों का, आपने वेस्ट मैनेज कर लिया, आपने कितना बड़ा वेस्ट पार्ट को, मैं बोलता हूं, आपने 5 किलो वेस्ट को लैंडफिल में जाने से बचाया, उस सोर्स को आपने रिसोर्स में कन्वर्ट किया और आपने काम किया, तो वो आ, उनको पिंच तो करते रहना पड़ेगा। हम्म। तो इसके लिए हम उन्हें फिर एग्जांपल्स भी दे सकते हैं कि और भी नहीं, ऐसी। उसमें मेन मेन इम्फेसाइज ये करना है हमको कि भाई ये नेचर के लिए अच्छा है ना। एक तरफ आप ग्रीन सस्टेनेबिलिटी का क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो आप स्कूल में तो प्रयोग करते नहीं है, तो बच्चा कैसे बोलेगा कि जो देखेगा वो सीखेगा ना? हम्म। क्योंकि अभी वो ठीक कैसे होगा? तो उसका यूज मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा ये चीज को, क्योंकि वो आपका कहना एकदम सही है कि केमिकल वाला एक फोन करने से 500 लीटर 100 लीटर केमिकल उनका मंथली कंजम्पशन के हिसाब से उनका कोटा आ जाता है। तो भाई ये भी चीज आएंगी। आप जो वहाँ के ऐसे चीज हैं या उनको वो ट्रेन कर सकते हैं इस चीज के लिए, इसका उपयोग करने से वातावरण ठीक होगा, पानी ठीक होगा, ड्रेन का इश्यूज ठीक होगा। आज अल्टीमेटली हम घर में भी जो कर रहे हैं वो नाली और नाले से होते हुए जाकर के नदी में ही तो मिल रहा है, तो उसमें हमारा भी पूरा बरोबर का योगदान है। खाली स्कूल इंस्टीट्यूट या उनको बोलने से तो नहीं होगा ना, तो फिर हम करेक्ट। अपना टालने वाली बात कर रहे हैं ना। तो वो उनको ही धीरे से पिंच करना पड़ेगा, बिना अपने को बिना पैनिक किए हुए, तब वो होगा। थैंक यू सर, गॉट इट। या ओके। Any other questions? Yeah. Sir, can I ask one question? Yeah, sure. हाँ हाँ अरविंदा। Yes.
Sir, this is regarding the legs cleaning which you have taken up with SHG, sir. Yes. So for this, which type of bioenzyme is more suitable, sir? That depends on the so many parameters, like what is the quality of the water. One, Okay. this is how much size of that lake. Then third, is there any drains are coming there added every moment. So that's so many things, and the area of the lake or canal or dam. तो उसके हिसाब से फिर वाटर क्वालिटी का टेस्टिंग के हिसाब से वी फॉर्मुलेट द बायोएंजाइम्स दैट कैन बी यूजफुल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. यू कैन नॉट डू, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कोई भी बायोएंजाइम कहीं पे भी डाल दिए और वो हो जाएगा. तो वो पानी की क्या स्थिति है उसको देख करके, ध्यान में रख करके फिर वो ट्रीटमेंट करना पड़ता है. उसके पैरामीटर्स है, वी हैव टू फॉलो दैट. Okay. Okay. Will you be able to guide us on those, sir? Maybe Sure. next session. Next Yes, session. yes, बिल्कुल. Please. Yeah, we can take up that on our group. So, Jayashree ma'am, you have a question? You can ask it. Hello. हाँ, Yes. नमस्ते जयश्री जी. आप म्यूट हो गई हैं. Yeah, you're on mute. Hello. हेलो. Yeah. हाँ. ओके. तो जो प्रीति मैम ने क्वेश्चन किया अभी स्कूल के लिए 100 ऑफ जी. लीटर का शॉर्टेज वाला, जी. तो मैं भी एक स्कूल से कनेक्टेड हूँ. वहां पर भी जी. मैंने अपना बायोएंजाइम बना के उनको ट्राई के लिए दिया था. तो जी. मुझे भी सेम प्रॉब्लम हुआ कि भाई मैं तो वहां फ्री में ही सिखा रही हूँ कि ऐसे ही कर सकते हैं, आप करो. जी. तो मैं इसके सॉल्यूशन में 100 ऑफ लीटर जब उनको चाहिए तो उसके सॉल्यूशन में मैंने उनको ऐसा बोला है कि हाँ. आप मुझे 5th 6th या 7th कोई एक स्टैंडर्ड के बच्चे दीजिए. और हाँ, हमारे यहाँ जूस सेंटर तो है बहुत सारे, उनके छिलके फेंकते हैं वो कचरे में. तो बिल्कुल. उनका पूरा एक बैच, एवरी मंथ हाँ, एक बैच, आपको सिर्फ गुड़ का पैसा लगेगा. ठीक वो है. भी आप एक साथ बना रहे हैं तो आपको वो भी सस्ते में मिलेगा. और बिल्कुल. हर बैच के अंदर एवरी मंथ अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, हाँ, हर बैच का एक गोल रहेगा कि मंथली आपको ये करना है. कुछ टीम रहेगी जिसको 20 डेज के लिए उसको ओपन क्लोज का सिस्टम सिखाएंगे हम. हाँ, तो इस हिसाब से अगर हम करें तो स्कूल का वो 100 हो या 1000 हो, धारा जितना चाहे उतना कर भी सकते हैं ना. ये बिल्कुल. भी एक सॉल्यूशन है. और यस. स्कूल के अंदर नीम के पेड़ है, बहुत सारे आम के पेड़ है. हाँ, तो मतलब बहुत सारी चीजें अवेलेबल है स्कूल के अंदर. बिल्कुल. तो ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा? अगर मैं आगे इसमें जाऊं तो अच्छा ही है ना? बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तो उसके फल हो रहे हैं, फूल हो रहे हैं. अल्टीमेटली उसको कर क्या रहे हैं, जला रहे हैं या खा रहे हैं, वही हो रहा है ना. और हाँ. जूस वालों से ला करके आप ये भी बता सकते हैं ना कि भाई इतना सारा वेस्ट हमारा जो लैंडफिल में जाता, वो लैंडफिल में जाने से बच गया. उससे हम्म. हमने उपयोगी चीज बना ली जो हमारे घर की क्लीनिंग कर रहा है. स्कूल और कैंपस में, कॉलेज कैंपस में बनाने का एक फायदा ये होता है कि स्पेस का कंस्ट्रेंट नहीं होता हमको. ठीक है. दूसरा, उनकी हाउसकीपिंग की टीम होती है. दूसरा, इतना बड़ा कैंपस होता है कि आप उसको किसी कोने में रख भी देंगे तो पता नहीं चलता है. हाँ. दूसरा, बच्चों को अभी हम शुरू से ये आदत डाले ये बनाने की, उनको सिखाने की, क्योंकि वो बहुत अच्छे से और बहुत मजे लेकर के करते हैं. और ये जो चीज हम उनको अभी फीड कर देंगे वो उनके जीवन पर्यंत जाएगी. वो चीज आखिरी तक उनके साथ ही रहेगी. हाँ. और ऐसी चीजें मुझे लगता है कि घर तक पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा. बच्चे बिल्कुल घर पे भी बिल्कुल नहीं खुद लगेगा, मन क्योंकि बना हाँ, सकते हैं. हम भाई वो स्कूल में बना रहे हैं. जैसे हम लोगों ने एक प्रयोग किया था एक स्कूल में, ये मैंने रायपुर में ही अपने स्तर पे किया था. तो 5-5 बच्चों का ग्रुप बना दिया हम लोगों ने. उस कंटेनर के ऊपर में 5-5 लीटर के ऊपर में नाम लिख दिया, और वो स्कूल का ही प्रॉपर्टी था. जब वो पूरा कंप्लीट हो गया तो उसको हम लोगों ने बच्चों को ही दे दिया कि भाई ये आपकी चीज है, आप अपने घर ले जा करके इसको यूज कीजिए. तो उसके लिए आप करेंगे तो उसमें वेरिएंट्स में मत जाइए, उसमें सिर्फ सिट्रस में ही जाइए आप लोग. ओके. सिट्रस फ्रूट्स में, क्योंकि अभी इनिशियली इंटरनल यूज को करें वो घर के अंदर में. पोछा वाला है, टॉयलेट क्लीनिंग का, क्योंकि बहुत सारा उसमें जाने से
किसी ने कोई ज्यादा डाल दिया, कोई कम डाल दिया, किसी ने प्लांट में यूज करने बोल दिया आपने, तो वो थोड़ा भी ज्यादा डाल देगा तो वो हाँ पेड़ पेड़ जल जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो बायोएंजाइम का नाम उसमें होगा नहीं, बायोएंजाइम का नाम खराब हो जाएगा। उसने हाँ कितनी मात्रा डाली वो उसको ध्यान नहीं रहेगा। हम ही लोग जब पोछा करते हैं घर में, तो 5 से 7 8 लीटर पानी में 1 ढक्कन 2 ढक्कन डालना है, उतनी मात्रा ही डाल करके करना है। तो वो उनको हमको और अच्छे से एजुकेट करके उनको बताना पड़ेगा। तो ये अगर 5वीं 6वीं 7वीं के बच्चों को आप लोग कर रहे हैं तो दिस इज रियली अ गुड थिंग। Thank you. And Jayashree, I would like to add something to this. So when it comes to cost, you can also tell them कि bioenzyme is like less is more, and it also always has to be diluted. So this way, if they think it's costly, so they can compare the cost with chemical cleaners. हाँ श्योर। Dilution, yes. So thank you, everyone. Now I would like to summarize this session. So regarding Sir talk, he talked about that he started making bioenzymes in March 2019. And the first waste treatment project that he tried was on a rice mill. And then the project, they approached other cities also, like Banaras Hindu Vishwavidyalaya. Then they went to Jammu and Kashmir in Srinagar and Punjab, Ludhiana. So at all these places, they did other projects related to waste management. Then basic reason for all of these was to provide alternative to chemicals, because we know that every water related problem is because of the chemicals that we use in our homes in the form of our cleaners. So that is the main purpose here, to give alternative for all those cleaners. And then this is how we're approaching the farmers, self-help groups, colleges, and schools so they can switch to bioenzyme. And towards the end, he talked that they took one project of pond cleaning in Bhiwadi, where they had put bioenzyme in a fire extinguisher and it was sprayed in the pond. And after certain days, it was noticed that the color of the pond completely changed. So this is the power of bioenzyme, and this is the reason why all of us are here. Now, I would like to call upon Preeti ma'am. She wants to talk about our talk series from 4th to 6th. Preeti ma'am. Yeah, good evening. So this we have today some of our interns who are helping us in our projects. They have joined today, and I welcome all of them. I'm sure they're learning, because for them everything was an eye opener. That's what I felt. Now they're working at the beat thing, many of them. So पेंट से कैसे pollution होता है, how we can revive our water just by cleaning our flow cleaners. So, all these small things they're learning now. And eh, I don't know how much it will be viable for them to change immediately, but I'm sure we are sowing a seed in this young mind, and it will definitely, if not now, it will soon. They're all young children. So I'm looking forward to another wonderful batch of our interns working on Beat. And mm, yeah, and we do, I've seen a lot of our members who are volunteering for 4th, 5th, and 6th. They are also joining for little briefing after this session. And someone is asking for the jaggery. See, jaggery, you will have to understand, any jaggery will do. Sukhjit ji, namaste. She has joined us from Norway. And Sukhjit ji, any jaggery will do. It need not be desi or organic kind, because enzyme itself has the capacity to break down all the harmful chemicals. So that doesn't matter at all. Um, anything? Hi, Preeti ji, namaskar. Yes.
जैसे मैंने घर अंदर बनाया है कि हाँ रूम जी। टेम्परेचर में प्लम्स का, पर हाँ उसके ऊपर कोई फंगस नहीं आई। हाँ। तो क्या वो, मैंने उसकी गैस रिलीज की थी शुरू में, हम्म, पर मैंने पूरा ढक्कन नहीं खोला। और जब मैंने पहले बाहर एक बनाया था गर्मी में, तो उसके ऊपर फंगस आई थी। सिट्रन का बनाया था, लाइम का बनाया था। तो अब मैंने अंदर बनाया तो उसमें किसी में भी, एक तो बनाया था प्लम्स का, दूसरा मैंने बनाया हाँ मिंट का, पर उनके किसी के ऊपर भी वो फंगस नहीं आई। Yeah, so see, this is how things are different. This, it's a nature of the ingredient what we are using, and also the temperature plays a major role. So क्योंकि घर के अंदर तो टेम्परेचर 20-22 रहता है। तो हम्म। अगर उसमें मुझे और गुड़ डालना चाहिए या क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं डालना है. It will take its every herb, if you make for different flowers and different herb, it behaves in a very different way. So I have experienced it myself. So the different if I made with the sage, the herb, or just with the flower petals, so both of them behaves in a different way. So sometimes we do get fungus on top. It's a yeast, and sometimes it doesn't get, and it's all just the basic nature of the ingredient what we have. So it's absolutely fine. It's not that it ओके, has to happen. Yeah, ओके, थैंक यू। yeah. Anyone else has any questions for Satish? या एक मेरा और है हाँ कि जी. जैसे हमने मिट्टी की फर्टिलिटी के लिए, हम्म. जैसे उसको बढ़ाना हो, तो उसमें हम कौन कौन से एंजाइम यूज करें? Um, the mitti, pani, for anything what when we start doing it, no, we basically take the test of that. So it's like you take as a human body. किसी में विटामिन बी की कमी होती है, किसी में विटामिन डी की कमी होती है, किसी में आयरन डिफिशियंसी होता है. सो ऑल द सॉइल्स आर डिफरेंट like our human body. So it depends on what they lack and what we added to that. और जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बढ़ा रहे हो हाँ. तो उसमें मीठे वाला एंजाइम यूज करें या खट्टे This वाला? banana, like this banana has a lot of potassium, so banana works very nicely. And if there are some lot of pest, if we are struggling with lot of pest, termite kind of thing or something, the neem also works with that. Uh, so it depends like what kind of soil is there and what is that less in the soil, what is the issue with the soil, and then we give that kind of enzyme. ओके। Hmm. और अगर जमीन में डालना है तो हमें 2% डालना चाहिए ना? हाँ. ठीक है, थैंक यू प्रीति जी। Thank you. And now, Gunjan ma'am, you can ask your question. या नमस्कार सर, आई वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन टू सर. सर वो आपने जो पेड़ का दिखाया था जिसका स्टम्प था एंड इट वाज रिवाइव्ड, सर उसके बारे में प्लीज कैन यू शेयर अ लिटिल मोर, कैसे किया था और ये एक्सपेरिमेंट वापस रिपीट भी हुआ है क्या, मतलब और भी ऐसे रिवाइव कर पाए हैं पेड़? नहीं, हम लोगों ने रायपुर में ही एक गौशाला है जहां मैं जाता हूँ सेवा देने के लिए, वहां पर हम लोगों ने किया था। तो एक हम लोगों ने पहले किया, एक फिर सेकंड को भी हमने करके देखा, तो उसकी हालत पहले वाले से ज्यादा खराब थी। लेकिन दोनों में बायोएंजाइम का स्प्रे हम लोग रेगुलर करते थे। शुरू में दिन में 3 बार करते थे, फिर 2 बार किए, फिर 1 बार किए, तो नई पत्तियां, नई कोपले, वो सब आना चालू हो गई है। एंड इट इज स्टिल अलाइव। आप रायपुर आए तो आप देख भी सकती हैं उसको। तो वो होता है या कुछ ना कुछ उसमें रहता है, फिर बायोएंजाइम की ताकत और वो मिलने के कारण से वो सरवाइव हुआ है। हम लोगों ने किया है, बाकी जगह हम लोगों ने
ऐसा मौका नहीं मिला है, लेकिन ये होगा ही होगा, क्योंकि एक जगह हुआ है तो वो होना चाहिए, बिल्कुल होगा, ऐसा है। And Kunjan, I feel we should try it out. See, यस, Satish ji can't go everywhere. So if you have something, you can just try it out. You're not doing anything harm. You're not harming anything. And there's no side effect of these anywhere. So, Yeah, let's no, I try. will definitely. So I also wanted to know, sir, which bioenzyme did you use? Any or any particular bioenzyme for that spraying? we mixed 2-3 bioenzyme with it. Like for potassium के लिए we added banana, neem and moringa. That was added into that. उसको फिर हम लोग 2 ml 3 ml के 1 लीटर में बना करके वो हम लोग करते थे, और जब मिक्स बनाते थे बायोएंजाइम डाल करके तो वी लीव इट फॉर मिनिमम 6 to 8 आवर्स के बाद ही उसको यूज करते थे, तो इससे इट इज मोर इफेक्टिव ये होता था वो। ओके सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली हाँ, इतने सारे ट्रीज, जब रोड्स और ये वाइडन होते हैं तो सो मेनी ट्रीज आर कट एंड दे आर यस यस, तो वो जो ठूक है ना वो भी uprooted लगाया जा सकता and transplanted, and उनका सर्वाइवल बहुत कम होता है। है। सो अगर if we can use bioenzymes for those हाँ, trees. that जिस समय हम लोग उसको फिर से लगाते हैं उस समय कुछ खाद, कुछ बायोएंजाइम स्प्रे करके उसमें उसको लगा दिया जाए, पानी में मिला करके बायोएंजाइम उस खाद के साथ में जो डालते हैं उसमें लगाने के साथ ही उसको डाल दिया जाए, तो कुछ ना कुछ हेल्प करके वो ग्रो करने में मदद तो करता है। क्योंकि मैंने ये किया हुआ है इसलिए मैं और ज्यादा विश्वास के साथ बोल सकता हूँ। Right. Thank you so much, sir. Thank you. That's very Manish ji, you have encouraging. some question. आपका कुछ क्वेश्चन है? सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हूँ, तो यहाँ पर हमारे लिए तेजाब और कास्टिक का यूज आता है जी मतलब HCl और H2SO4 जिसको शायद बोला जाता होगा, जी, तो उसका मतलब जैसे इससे बायोएंजाइम से कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। आप फिर वो जो पानी निकल रहा है उसको आप लोग ETP STP में लाते हैं कि डायरेक्ट नाली में बहा वो देते हैं? जैसे प्लांट लगे हुए CETP प्लांट लगा हुआ है पॉल्यूशन हाँ, बोर्ड का, जयपुर ओके, का। हाँ, तो जो इंडस्ट्रीज है उनको भेज देती है पानी, तो वहां पर ट्रीट होता है, फिर वो नदी में डाल देते थे। एक्चुअली नदी, यहाँ लूनी नदी काफी खराब, पूरी खराब हो ही चुकी है। वो देखिए, वो भेजने वाला जो मामला है ना वो ट्रीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वाला बात है। आप अपने प्लांट हमारे से यहाँ से जो, विदाउट ट्रीट जाता है। हाँ, विदाउट ट्रीट जाता है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा आप पानी जो आपका डिस्चार्ज वाटर निकल रहा है ना हाँ जी। उसको आप लोग हमको भेजेंगे या उसका केमिकल एनालाइज करा करके भेजेंगे, देन वी कैन सजेस्ट यू। लेकिन ओके अगेन उसमें क्या होगा ना, आपका कॉस्ट बढ़ेगा तो आप भी नहीं करना चाहेंगे। वो भी ओके एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम इंडस्ट्री लगा लिए हैं तो सब सरकार का काम है ना, हमारा काम इंडस्ट्री चलाना है। हाँ सरकार जी। के काम में हम क्यों 1 रुपए भी बायोएंजाइम में खर्चा करेंगे, या हमको कौन सा गोल्ड मेडल मिलने वाला है। तो ये जो सोच हो गया है ना वो खराब है हमारा सोच। नहीं, लेकिन सर एक्चुअली यहाँ जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो कभी ना कभी इंडस्ट्रीज में दिक्कत तो आनी ही है। अब जब वो सब आएगा साथ सर, में होंगे देखिए तो कॉस्टिंग कोई सबकी भी इक्वल। कोई भी इंडस्ट्री हो सर, बिना पानी के इंडस्ट्री नहीं चलती है, कोई भी हो। यू टेक एनी इंडस्ट्री, बिना पानी के इंडस्ट्री नहीं चलती है। और अभी तो हमको ग्राउंड वाटर मिल रहा है, नदी से हाँ पानी मिल रहा है, फिर वो हाँ जी। नदी में हम लोग खराब पानी को भेज रहे हैं। वो हाँ जी। पूरा देश का ETP STP का जो हालत है वो कितना काम कर रहा है कितना नहीं काम कर रहा है। वो बनाते हैं, जब तक वो 50 टन का लगाते हैं हमको 100 टन की जरूरत पड़ती है। एग्जैक्टली यही होता तो है। और हर आदमी अपना इंडिविजुअल बिजनेस को एक्सपेंशन कर रहा है, बट एक्सपेंशन के साथ में वो इन्वायरमेंट के नॉर्म्स को कोई पूरा नहीं करता है साहब। चाहे वो, मतलब मैं आपके शहर की बात नहीं करता, वो हर शहर का कमोबेश वही हालत है। जो बहुत स्टेट्यूरी पालन करते हैं वैसी इंडस्ट्री बहुत कम है जो लोग उसको पूरा पालन करते हैं, लेकिन वो ऐसी चलता है। तो पर दैट ये कैन बी मतलब ट्रीटेड जी, ओके बोलिए सर। दैट हाँ कैन जी। बी ट्रीटेड, मतलब उसमें कुछ कुछ हम लोग कर करके कुछ उसको अच्छा करके ETP STP में भेज सकते हैं पानी को आपके। तो उससे ये होगा कि उसमें एंजाइम ऑलरेडी मिला हुआ रहेगा, तो वो जो
पानी को ट्रीट कर रहे हैं। हम्म जो भी इन लोग ब्लीच डाल रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं, चूना डाल रहे हैं, क्लोरीन डाल रहे हैं, हम्म उसको कुछ ना कुछ सुधार तो करेगा ही उसमें। एंजाइम अपना काम तो करेगा एंजाइम, बिल्कुल सर, एक लेकिन वो पर्सन और था। कितना कितना करेगा ये नहीं बोल सकते, क्योंकि 99 लोग दूध की जगह पानी डाल रहे हैं, तो दूध नहीं मिलेगा उसमें। सर एक पर्सन और था। हाँ जी, बताइए। इस इंडस्ट्रीज में जैसे हम जो प्रोसेस भी करते हैं मर्सराइजिंग का, जी, उसमें ब्लीच का और कास्टिक का यूज होता है। बिल्कुल तो होता है इसको सर। एज ए रिप्लेसमेंट अपना जैसे बायो एंजाइम कुछ कर सकता है, तो उसमें उसको ट्रीट करना शायद और इजी रह जाए, ऐसा कुछ। इसके लिए आप थोड़ा सा समय देंगे और अपना प्रोसेस आप बताएंगे ना, तो हम लोग और एक छोटा सा ट्रायल करके देखिए। आप, हम ये नहीं बोलते, आप 5% में आप खुद उसको ट्रायल करके देखिए वेदर इट इज वर्किंग और नॉट वर्किंग। और जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो बाजार में बिकता है कि नहीं बिकता है, वो भी आपको देखना पड़ेगा ना। ओके सर। तो वो पहले आप उसको हम लोग सजेस्ट करेंगे आपको। और आप उसके लिए पहले खुद अपने स्तर पे, छोटे स्तर पे, बहुत छोटे स्तर पे, नेग्लिजेबल स्तर पे आप उसको ट्रायल करके देखिए कि वेदर इट इज वर्किंग नहीं, जितने भी आपके पैरामीटर्स होते हैं उसमें वो सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। वो बैठता है तो आप आगे चले जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली आप उसको प्रोसेस भी करेंगे तो फाइनल जो चीज है वो तो सेल्स है ना सर, आपको अपना माल बेचना है। तो माल ओके। आपका बिकेगा नहीं तो वो सर पे आ जाएगा आपके, तो वैसा भी काम करना तो इट इज नॉट एडवाइजेबल। ऐसा सर मैंने थोड़ा बहुत अपने लेवल पे स्टार्ट किया है, जी हल्का सा ट्रायल। जी सो आज मेरे सर नागेश सर जी से भी बात, बहुत अच्छा उन्होंने रेस्पॉन्स किया था मेरे को, कि जो भी होगा नहीं आपको नहीं, पूरी तरह से करके बताइए। थैंक यू सर। पूरा 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 सर, थैंक यू जरूर। Thank you, sir. Preeti ma'am, can we have you again? Yes. So, anyone has any more questions? No. See, we will have, we keep doing the sessions, and this monthly session is basically to know each other and how the kind of help you can get from us and what you can do collaboratively with us. So, all that we are open, and we don't get to interact with each other very often, but yeah. Now, we are also going to have now beat is going on, as I said, full January. We have lot of sessions, lot of talk, lot of awareness going on. And April, we will have a sustainability fest also coming up. And this is not going to be online, this is going to be offline. So again, we will need all of you. You can travel, we can meet together, we can do some nice program together. And all this thing also will happen. So 2025 looks very interesting, and we are all looking forward to it. So if any of you have any questions about it, then we carry on, or we start our preparation for 4th, 5th, and 6th now. Talk series. एक्सक्यूज मी मैम, Yes, please. मैंने बायो एंजाइम्स तैयार किया हूँ। सो जनरली ब्रास के लिए इमली यूज करते हैं हम लोग क्लीन करने के लिए, Ah, है ना। सो आई केप्ट फॉर इमली, बायो एंजाइम, मदर कल्चर एंड सोप नट्स. okay. So after 1 week, I took some Imlika paste from that bioenzyme say, and I did it, but it was nicely cleaned out. Yeah, it works wonder on brass, the tamarind enzymes. Tamarind and this one. Coconut. Even we can add it in the lemon also, I think so. है ना madam? Yes. So Okay. few of our members, they have cleaned few brass items in some big will temples, Mm-hmm. and they have got amazing results and all. Same, this Imli only they put it, ma'am. Yeah, imli and this one lemon. Okay, lemon also. Okay. Imli is dry imli or No, no, imli? enzyme.
No. Imli, what they put, whatever we use in the kitchen or Yeah. kacha imli. No, whatever we use in kitchen, that. Okay. And one more thing, ma'am, that sugar cane syrup also we can made it with the Yes. bio. Huh? Yes. How? Same. Instead of jaggery, you can use that, the same ratio. Means water 1 liter and 300 grams sugar cane. 1 liter, no, 1 liter water, 100 ml of sugar cane. Sorry. Okay. Sugar cane pieces we can add it. Sugar cane juice is advisable. Acha, sugar cane juice is advisable. This mother culture is we can use into the fruits also na for edible भी कर सकते हैं ना उसको. Yes, you can. Okay, but there is no need to add only sugar cane juice and water. That's it, na ma'am? Yeah. Okay, thank you, ma'am. You can add some fruit also in that. So yeah, instead of jaggery, you can add sugar cane juice. Acha, no, actually I heard somewhere about this. So if you keep this mother culture like मतलब only sugarcane syrup को रखेंगे तो we can add it into the tomato pulp for as a tomato ketchup So or something. Arundhati, do one thing. This is a task and it is an interesting thing. So just do it and share it so that we also learn about it. Okay, ma'am. Yeah. Because I'm also amateur हूँ, so anyone is did this one, so maybe YouTube में ऐसे सुना था, तो इसकी वजह से if anyone is doing or you are people are seniors, that's why I'm asking. No, it is good. You should try. You should always try new things. And believe me, each one of us are scientists in our own way. So it's only that whatever we try it out, we are using it and we are applying it in our daily lives. So this is a very big thing, it is outside the lab. So definitely new things are always good to experiment, and when we share it, we learn it also, right? And last one more question, ma'am. The papaya peels and the seeds will come now. What should we do? We can put in the seeds also. Seed, why you want to spoil the seed? You can just throw it for it to grow. But some, okay. So seeds are meant to be grown as a nice plant. But sometimes normally we will put it in the dustbin only, na ma'am. That's why I ask you. No, just put it when you go for a walk, just spread it around in the park or wherever side. Okay. I mean, somebody will definitely, because nowadays the kind of disease is coming up, everybody needs these leaf papaya. Banana. So much in demand. So let it grow in the footpath, let it grow in the public park. You don't have to do anything. You just have to carry it in small paper and throw it wherever But you. otherwise we can put it in the water. मतलब bio-exam में. No, the seeds I usually don't do anything. I like to grow tree from it. I know. Okay. Thank you, ma'am. Welcome. Okay. Any more questions? No, I think we can start with the talk series. Yeah, so I think we are done and we can just start with the pledge and close this session so that we can start our music. Can we have a picture before that? Can someone click pictures? Swati ma'am, can you click 2, 3 pictures? And can everyone switch on their cameras? Thank you. किसने लेनी है? आप ले लो मेरे, या योगिनी मैम आप ले लो मेरे लैपटॉप मेरा में। भी न्यू लैपटॉप है, मुझे नहीं आता। अरे फोन से मुझे भी नहीं अच्छा, आता। फिर तो ले लो। Do it. I'll do it. I'll do it. ठीक। Is it done?
Done. Otherwise, we'll keep smiling only. Just one sec. Just one last. Yeah. Okay, it's done. Thank you, people. Okay, thank you. So now we'll do our pledge, and all of you can repeat after me. I pledge to embrace and promote the use of bioenzymes to protect our soil, air, and water. I pledge to embrace And promote the use of bioenzymes to protect our soil, Soil and water. air, and I commit to making and using bioenzyme for organic waste management, reducing chemical pollutants, and fostering sustainable ecosystems. I commit to making and using bioenzyme for organic waste management, reducing chemical pollutants, Pollutants and and fostering fostering sustainable sustainable ecosystems. ecosystem. And everyone, please be active. I can't hear 30 voices. Together, we'll safeguard our environment and create a cleaner, healthier world for all. Together we will safeguard our environment, create a clear, healthier world for all. Thank you to all of you. The session is over now. Thank you for attending the session.